এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰ লৈ আহিছো। সন্দেহজনক নাগৰিক দেখিলেই DNA টেষ্ট কৰক, এতিয়া এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। আৰু লগতে তেওঁ কৰিছে কেতবোৰ মন্তব্য। সেই মন্তব্যসমূহৰ সন্দৰ্ভত আমি জনাম আপোনালোকক এতিয়া সবিশেষ। সন্দেহজনক নাগৰিক দেখিলেই কৰক DNA টেষ্ট। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ এইবাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। লগতে তেওঁ কৈছে অসমত আছে 50 লাখ বাংলাদেশী। এটা ডাঙৰ কথা কৈছে অসম প্ৰসংগত লৈ। অসমত এতিয়া 50 লাখ বাংলাদেশী আছে বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে 1951ক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ NRC পুনৰীক্ষণৰ দাবী কৰিছে প্ৰবীণ টগাৰিয়াই। আৰু জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা নললে এদিন আসাম ফাইলছ নিৰ্মাণ হ'ব বুলিও মন্তব্য। আসাম ফাইলছ নহবলৈ খেদিব লাগিব 50 লাখ বাংলাদেশীক। এই মন্তব্য কৰিছে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত। তেওঁ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰবীণ টগুৰিয়াই এই মন্তব্য কৰিছে। আমি এই সন্দৰ্ভত লৈ আহিছো খবৰ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে বাওঁফালে স্ক্ৰীনত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এখন সংবাদমেলৰ, য'ত এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিলে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি প্ৰবীণ টগুৰিয়াই। আৰু লগতে তেওঁ অসম প্ৰসংগত লৈ অসমত বাংলাদেশী কিমান আছে ইয়াকো লৈ তেওঁ এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰি কৈছে অসমত 50 লাখ বাংলাদেশী আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আৰু সন্দেহজনক নাগৰিক দেখিলেই DNA টেষ্ট কৰক বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। লগতে 1951ক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ NRCৰ পুনৰীক্ষণৰ দাবী প্ৰবীণ টগুৰিয়াৰ। আৰু জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা নললে এদিন আসাম ফাইলছ নিৰ্মাণ হ'ব। আসাম ফাইলছ নহবলৈ খেদিব লাগিব 50 লাখ বাংলাদেশীক। মন্তব্য এই মুহূৰ্তত শুনাম। DNA lab in every district, and anybody who is suspected, उनका DNA टेस्ट करो। उनका DNA आसाम के अन्य लोगों से मिलता है, इज असमिया, नहीं मिलता है तो वह बांग्लादेशी। उनको तुरंत आइसोलेशन कैंप में ले जाओ। They don't have right to stay in land of Assam. Send them to isolation camp and later deport to Bangladesh. And if Bangladesh does not agree, capture part of a Bangladesh territory and settle this infiltrator within a Bangladesh. यह आसाम और देश की रक्षा के लिए करना ही होगा केंद्र सरकार को भी। जब डिपोर्ट की बात आती है, देयर इज अ रोल ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शुड बी डिसीजिव। और दुख की बात है कि सेंटर और राज्य में दोनों में भाजपा की सरकार है और 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर है। जैसे मैंने चीफ मिनिस्टर को कांग्रेचुलेट किया, परंतु इन्फिल्ट्रेटर को यदि नहीं हटाएंगे तो इट विल ए फेलियर ऑफ ए गवर्नमेंट, सेंटर एज वेल एज स्टेट। और उस स्थिति में हम फिर डेमोक्रेटिकली आवाज उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। Film is a certificate of a failure of a central government in last 32 years because they are not able to rehabilitate कश्मीरी हिंदू। मेरा कहना है कि कश्मीरी हिंदू को बसाकर इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध केंद्र सरकार ने युद्ध घोषित नहीं किया और 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नियंत्रण का कानून नहीं बनाया, तो 20 साल के बाद आसाम फाइल फिल्म बनेगी, उत्तर बिहार फाइल फिल्म बनेगी। हम किसी भी कीमत पर यह नहीं होने देंगे। और नहीं होने देने इसलिए तो मैंने NRC की बात की, 51 की। यदि आसाम फाइल फिल्म नहीं बनने देनी है तो 1 साल में NRC नई फ्रेज 51 कट ऑफ लाइन और 50 लाख को डिटेक्ट करके उनको आइसोलेशन कैंप में ले जाना ही होगा। जो नेटवर्क था उनके विरुद्ध उन्होंने जबरदस्त अभियान चलाया है। वह आसाम की युवा पीढ़ी को बचाने का प्रयास है। और तीसरा, सरकार के द्वारा मदरसों को जो ग्रांट मिलती थी उनमें परिवर्तन करना। यह तीनों के लिए आसाम के मुख्यमंत्री को मैं
धन्यवाद करता हूं। परंतु आसाम के मुख्यमंत्री और आसाम सरकार से मेरी मांग है, हम ही व्यक्ति हैं जिन्होंने एनआरसी घोषित होने के बाद एनआरसी कैंसिल करवाने के लिए आंदोलन किया था, आसाम बंद का ऐलान किया था, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना था उनको इलीगल डॉक्यूमेंट से लीगलाइज किया था। We are the people who have opposed NRC in Assam, run campaign, given Assam Bandh call. Now we demand that fresh NRC should be prepared, but cut-off line should be 1951. एक देश में दो कानून नहीं हो सकता है, इसलिए धारा 370 हटी। तो पूरे देश में फॉरेनर की कट ऑफ लाइन 1951, वाई 73 इन आसाम। इसलिए आसाम सरकार तुरंत एनआरसी शुरू करे, 51 कट ऑफ लाइन और 51 के बाद आए बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठियों को डिटेक्ट करे, डिटेक्ट करने के बाद उनको आइसोलेशन कैंप में ले जाए और बाद में बांग्लादेश रिपोर्ट करे। मेरा विश्वास है जिस तरीके से उन्होंने आसाम की जमीन बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करवाई, ऐसे आसाम को भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से मुक्त करवाएंगे। हमारे आसाम के इतिहास का हीरो और भारत का हीरो लाचित बरफुखान है, जिन्होंने मुगलों से आसाम को मुक्त करवाया था। मैं आशा रखता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री लाचित के करकदमों पर चलकर अगले 1 वर्ष में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से आसाम को मुक्त करवाएंगे, करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे और आसाम और पूरा भारत यह कदम के लिए, जैसे सरदार पटेल के प्रति भारत ऋणी है, ऐसे मुख्यमंत्री के प्रति ऋणी रहेगा। আৰু এয়া আছিল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ আজিৰ দিনটোত তেওঁ কৰা মন্তব্য। তেওঁ অসমৰ প্ৰসংগ টানি আনি কৈছে, যিহেতুকে অসমতো বিভিন্ন সময়ত বাংলাদেশীৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ ওলাই থাকে বা বিভিন্নজনে এই প্ৰসংগক লৈ সামাজিক মাধ্যমত হৰপ হৈ আলোচনা কৰে, নাইবা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তেও বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন খবৰ প্ৰকাশ পায়। আৰু ঠিক সমান্তৰালকৈ আজি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি প্ৰবীণ তগুৰিয়াই গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই সন্দৰ্ভত এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰদান কৰিলে। অসমত 50 লাখ বাংলাদেশী আছে বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে 1951 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ এনআৰচি পুনৰীক্ষণৰ তেওঁ দাবীও জনাইছে। জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা নললে এদিন আসাম ফাইলছ নিৰ্মাণ হ'ব আৰু আসাম ফাইলছ নহ'বলৈ খেদিব লাগিব 50 লাখ বাংলাদেশীক বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। বিভিন্ন সময়ত এইগৰাকী বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি প্ৰবীণ তগুৰিয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু সেই মন্তব্যসমূহ সামাজিক মাধ্যমতো আৰু সংবাদ মাধ্যমতো সেই মন্তব্যসমূহক লৈ হৰপ চৰ্চা অব্যাহত থাকে। আৰু ঠিক সেইদৰে আজিৰ দিনটোতো অসম প্ৰসংগক লৈ বা অসমত বাংলাদেশী কিমান আছে সেই প্ৰসংগক লৈ তেওঁ এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। আমি আকৌ এবাৰ সম্ভৱ হ'লে মন্তব্যটো শুনাম। DNA lab in every district and anybody who is suspected, उनका DNA टेस्ट करो। उनका डीएनए आसाम के अन्य लोगों से मिलता है, ही इज असमिया, नहीं मिलता है तो वह बांग्लादेशी, उनको तुरंत आइसोलेशन कैंप में ले जाओ। दे डोंट हैव राइट टू स्टे इन लैंड ऑफ आसाम। सेंड देम टू आइसोलेशन कैंप एंड लेटर डिपोर्ट टू बांग्लादेश
And if Bangladesh does not agree, capture part of a Bangladesh territory and settle this infiltrator within a Bangladesh, यह आसाम और देश की रक्षा के लिए करना ही होगा केंद्र सरकार को भी। जब डिपोर्ट की बात आती है, देयर इज अ रोल ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शुड बी डिसीजिव। और दुख की बात है कि सेंटर और राज्य में दोनों में भाजपा की सरकार है और 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर है। जैसे मैंने चीफ मिनिस्टर को कांग्रेचुलेट किया, परंतु इन्फिल्ट्रेटर को यदि नहीं हटाएंगे तो इट विल ए फेलियर ऑफ ए गवर्नमेंट, सेंटर एज वेल एज स्टेट। और उस स्थिति में हम फिर डेमोक्रेटिकली आवाज उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। Film is a certificate of a failure of a central government in last 32 years because they are not able to rehabilitate कश्मीरी हिंदू। मेरा कहना है कि कश्मीरी हिंदू को बसाकर इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध केंद्र सरकार ने युद्ध घोषित नहीं किया और 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नियंत्रण का कानून नहीं बनाया, तो 20 साल के बाद आसाम फाइल फिल्म बनेगी, उत्तर बिहार फाइल फिल्म बनेगी। हम किसी भी कीमत पर यह नहीं होने देंगे। और नहीं होने देने इसलिए तो मैंने एनआरसी की बात की, 51 की। यदि आसाम फाइल फिल्म नहीं बनने देनी है तो 1 साल में एनआरसी नई फ्रेश 51 कट ऑफ लाइन और 50 लाख को डिटेक्ट करके उनको आइसोलेशन कैंप में ले जाना ही होगा। जो नेटवर्क था उनके विरुद्ध उन्होंने जबरदस्त अभियान चलाया है, वह आसाम की युवा पीढ़ी को बचाने का प्रयास है। और तीसरा, सरकार के द्वारा मदरसों को जो ग्रांट मिलती थी उनमें परिवर्तन करना, यह तीनों के लिए आसाम के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद करता हूं। परंतु आसाम के मुख्यमंत्री और आसाम सरकार से मेरी मांग है, हम ही व्यक्ति हैं जिन्होंने एनआरसी घोषित होने के बाद एनआरसी कैंसिल करवाने के लिए आंदोलन किया था, आसाम बंद का ऐलान किया था, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना था उनको इलीगल डॉक्यूमेंट से लीगलाइज किया था। वी आर द पीपल हु हैज अपोज्ड एनआरसी इन आसाम, run campaign, given Assam Bandh call. Now we demand that fresh NRC should be prepared, but cut-off line should be 1951. एक देश में 2 कानून नहीं हो सकता है, इसलिए धारा 317 हटी। तो पूरे देश में फॉरेनर की कट ऑफ लाइन 1951, Why 73 in आसाम? इसलिए आसाम सरकार तुरंत एनआरसी शुरू करे, 51 कट ऑफ लाइन और 51 के बाद आए बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठियों को डिटेक्ट करे, डिटेक्ट करने के बाद उनको आइसोलेशन कैंप में ले जाए और बाद में बांग्लादेश डिपोर्ट करे। मेरा विश्वास है जिस तरीके से उन्होंने आसाम की जमीन बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करवाई, ऐसे आसाम को भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से मुक्त करवाएंगे। हमारे आसाम के इतिहास का हीरो और भारत का हीरो लाचित बरफुखान है, जिन्होंने मुगलों से आसाम को मुक्त करवाया था। मैं आशा रखता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री लाचित के करकदमों पर चलकर अगले 1 वर्ष में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से आसाम को मुक्त करवाएंगे, करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे और आसाम और पूरा भारत यह कदम के लिए, जैसे सरदार पटेल के प्रति भारत ऋणी है,
ऐसे मुख्यमंत्री के प्रति ऋणी रहेगा।